Hello students, from today's lecture we are going to start with chapter 11, that is mensuration. Now in this chapter we are going to learn some formula based on area, perimeter, surface area and volume. Area and perimeter will be for the two-dimensional figures like rectangle, square, parallelogram, rhombus, triangle, circle, semicircle, etc. Trapezium. Okay. And we can say that surface area and volume, this kind of formula will be for the three-dimensional figures like cube, cuboid and cylinder. These three-dimensional figures we are going to study in this chapter. Later on in ninth, there is one chapter which is surface area and volume. Same chapter will be there in your 10th also, and in this both chapters you will study different shapes including cube, cuboid, cylinder. Then for some more solids will be added like cone, we can say that sphere, hemisphere, and in 10th class there will be frustum of cone. Okay, so right now let us proceed with area and perimeter. Of course area and perimeter will be of two-dimensional figure. So first of all we will learn all the formula based on area and perimeter of different shapes. Okay, so we are proceeding with rectangle. Okay, so rectangle you know very well, it is two-dimensional figure and whose two dimensions are length and breadth. Length and breadth. Okay, so this is rectangle, we can say all four angles will be right angle. Now let us have formula. So first of all, perimeter. Now students, keep one thing in your mind, perimeter of any shape will be equal to sum of length of its all boundaries. किसी भी शेप का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि उसके सारे बाउंड्रीज का एडिशन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पेरीमीटर. तो रेक्टेंगल में हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है. तो ये L है तो ये ऑपोजिट साइड L होगा, ये B है तो ऑपोजिट साइड भी क्या होगा, B जितना होगा. तो हमारे पास चारों बाउंड्रीज के लेंथ है, तो इसका पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, सो दिस विल बी लाइक L प्लस B प्लस L प्लस B, L प्लस B प्लस L प्लस B. तो L प्लस L क्या होगा, ट्वाइस ऑफ L. B प्लस B क्या होगा, ट्वाइस ऑफ B. टू कॉमन ले ले तो टू इंटू ब्रैकेट L प्लस B. फॉर श्योर आप लोग ये फॉर्मूला जो है वो आपके प्रीवियस क्लासेस में पढ़े ही होंगे, और ये किस तरीके से फॉर्मूला बना वो हमारा पता होना ज़रूरी है. तो अगर हम फॉर्मूला भूल जाए फिर भी खुद कॉन्सेप्ट अप्लाई करके फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, L प्लस L ट्वाइस ऑफ L, B प्लस बी ट्वाइस ऑफ B, टू कॉमन तो इंटू ब्रैकेट L प्लस B. ठीक है, तो ये हुआ पेरीमीटर रेक्टेंगल का. L और B के जो भी वैल्यूज हमें अगर क्वेश्चन में दिए हो तो वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और पेरीमीटर जो है वो ढूंढ सकते हैं. ठीक है, सपोज मान लो कि L5 दिया है और B3 दिया है, तो 5 प्लस 3 8, 2 ज़ा 16 मीटर सेंटीमीटर जो भी है, दैट विल बी पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू डायमेंशन, दैट इज L इंटू B. L multiplied by B, length multiplied by breadth. Okay, that will be area of rectangle. तो ये रेक्टेंगल के फॉर्मूले हुए पेरीमीटर एंड एरिया. आपको क्या करना है, ऑफकोर्स हेडिंग्स जो भी है वो देने, पेंसिल से और स्केल से प्रॉपरली ये फिगर बनाना है, डायमेंशन L और B मेंशन करना है, और फिर पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला लिखना है. वैसा हर एक शेप में आप यही प्रोसीजर फॉलो करोगे. ठीक है, तो पहले लेक्चर पॉज करके ये लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट शेप देखते हैं.
Okay. Now after rectangle there is square. Square, as we know, it is a rectangle in which all sides are equal. तो सभी साइड्स का इक्वल मेजर होगा तो हम सबके लिए L प्रेजेंट कर सकते हैं, लेंथ. ठीक है, क्योंकि सेम ही अगर साइड के मेजरमेंट है तो सबके लिए सेम वेरिएबल नोटेशन में जाएगा. सो नाउ पेरीमीटर. So as we know, perimeter of any shape will be equal to sum of its all boundaries. तो L plus L plus L plus L, L plus L plus L plus L बोले तो 4L या 4 times L. ठीक है, तो ये हुआ इसका पेरीमीटर. नाउ एरिया. तो एरिया जैसे हमने डिस्कस किया कि इसके दोनों डायमेंशन का प्रोडक्ट, तो L इंटू L इट विल बी L स्क्वायर. तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हुआ हमारे स्क्वायर के रिगार्डिंग फॉर्मूले. लिख लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे. Okay, then after square there is a parallelogram first. पैलोग्राम. तो पैलोग्राम आपको पता है कुछ इस तरीके का होता है, बढ़िया सा. ठीक है, से A B C और D. अब D में से मैं इस तरीके से AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, से DE. ओके, तो ये DE जो है वो क्या करेगा, हमारे पैलोग्राम का हाइट रिप्रेजेंट करेगा. दिस DE विल रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द पैलोग्राम. ठीक है, परपेंडिकुलर जो होगा वो एग्जैक्ट हाइट हमें कंसिडर करके देगा. ठीक है, तो पहले तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD. ठीक है, चारों साइड्स का एडिशन दैट विल बी पेरीमीटर. बट इफ वी कंसिडर हियर देन इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ABCD और BC और AD इक्वल होंगे, AB और CD इक्वल होंगे, BC और AD इक्वल होंगे. ठीक है, तो AB प्लस BC प्लस CD की जगह पे हम AB सब्स्टिट्यूट करते हैं और AD की जगह पे हम BC. सो ट्वाइस ऑफ वी कैन से दैट AB प्लस BC, क्योंकि AB 2AB होगा और BC 2BC. रेक्टेंगल के जैसा ही आप कंसिडर कर सकते हो, 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी. लेकिन यहाँ L प्लस बी नहीं जाएगा क्योंकि ये लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है, इस वजह से. ठीक है, देन एरिया ऑफ पैलोग्राम. पैलोग्राम का एरिया क्या होगा, तो बेस इंटू हाइट. दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ पैलोग्राम. बेस इंटू हाइट. अब बेस इन द सेंस कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है या हाइट है वो जिसके ऊपर खड़ा है, दैट विल बी द बेस. सो वी कैन से दैट दिस होल AB इज अ बेस. एंड हाइट इन द सेंस जो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज द हाइट, जो हाइट रिप्रेजेंट करता है. सो DE, तो AB इंटू D. फॉर्मूला आपको यही याद रखना है. फिर हम आगे के स्टेप्स में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में इसके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे जब भी एरिया पूछा होगा तब. ठीक है, और पेरीमीटर इन द सेंस वी कैन से दैट सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स मल्टीप्लाइड बाय 2. आप इस तरीके से ये याद रख सकते हो. ठीक है, तो ये हुआ हमारा पैलोग्राम. लिख लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं.
ओके, सो पैरेललोग्राम के बाद हमारे पास है रोम्बस। रोम्बस हमें मालूम है कि इसके सारे साइड्स जो है उनके लेंथ कैसे होता है, इक्वल होता है। इफ यू कंसीडर ए बी सी डी, देन ए बी बी सी सी डी ए डी, चारों साइड्स के लेंथ कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो रोम्बस के लिए हम पेरीमीटर अगर हम देखें तो क्या होगा कि चारों साइड्स का एडिशन, ठीक है, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, जो भी साइड का मेजरमेंट दिया है, जैसे यहाँ ए बी हम कंसीडर करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय ए बी, अगर ए बी 5 दिया है तो 5 4 20 विल बी द पेरीमीटर। इसका एरिया जो है वो थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो चेंज है, दैट इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। दिस इज a formula to find the area of rhombus। मैं इसके डायगोनल्स ज्वाइन कर दूं ऐसे, ठीक है, तो ये जो है वो मेरा डायगोनल D1 हो जाए, ये जो है वो मेरा डायगोनल D2 हो जाए, तो एरिया विल बी लाइक दिस, इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं हाफ इंटू ए बी डी इंटू ए सी, D1 BD है इसलिए BD इंटू ए सी। इनके जो भी लेंथ दिए हो उन लेंथ का प्रोडक्ट डायगोनल्स, डायगोनल्स के जो भी लेंथ हो उनका प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई बाय हाफ, देन दैट विल गिव्स अस द एरिया। याद हमेशा आप ये रखो, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि दो डायगोनल का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय हाफ, या फिर दो डायगोनल का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 2। तो इससे ये फॉर्मूला इजीली हम याद रख सकते हैं, बाकी ये तो है ही। ठीक है, ये अगेन आप याद नहीं रख सकते क्योंकि हमने यहाँ ए बी सी डी नोटेशन यूज़ किया है। अब पी क्यू आर एस हो, ठीक है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू हो, तो ये नोटेशंस नहीं आएंगे, अलग आ जाएंगे। इसलिए ये सिर्फ ऐसे ही मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज याद हम यही रखेंगे, या ये आप रख सकते हो, बेटर ये है। तो रोम्बस आप लिख लो, फिर आगे बढ़े। ओके, रोम्बस आ गया, तो अभी हम नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल भी देख लेते हैं एक बार। से ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे ढूंढ सकते हैं। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे बी डी एक डायगोनल बनाता हूँ और सी और ए में से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे इस डायगोनल के ऊपर। सपोज ए पी एंड सी क्यू, तो इसको मैं परपेंडिकुलर 1 बताता हूँ, इसको मैं परपेंडिकुलर 2 बताता हूँ। ओके, तो इसका अगेन आपका पेरीमीटर जो होगा वो सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, ओके, या सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। और एरिया क्या होगा इसका, तो आप देखो हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स यानी कि ये, तो देखो हाफ इंटू डायगोनल यानी कि बी डी का लेंथ
इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स यानी कि P1 और P2 के लेंथ का एडिशन P1 प्लस P2। ठीक है, तो ये जो होगा वो फॉर्मूला आपका क्या होगा, हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ढूंढने के लिए। ऑफ कोर्स आपको अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया ढूंढना है तो डायगोनल है, परपेंडिकुलर्स है, उनके वैल्यूज तो उनको देने ही पड़ेंगे या वो ढूंढने के लिए कोई क्लू देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। अब ये फॉर्मूला डिराइव बड़े सिंपल तरीके से हुआ है कि ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी डी कंसिडर करें तो बी डी बेस और ए पी उसका हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वही चीज़ इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों को ऐड कर दिया तो हमें ये मिला। इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुआ। ऐसे अगर आपको डेरिवेशन देखना हो तो हाँ, इट्स नॉट कंपल्शन। जैसे कि मैं कहूँ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी से जो क्लोज फिगर बनता है उसका एरिया, ये शॉर्ट फॉर्म, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा, ए बी डी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बी डी बेस है और हाइट जो है वो ए पी है या P1, आप जो भी कंसिडर करो। एरिया ऑफ बी सी डी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस अगेन बी डी और हाइट जो है वो सी क्यू। तो हाफ बी डी हम दोनों में से कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में ए पी प्लस सी क्यू। ए पी और सी क्यू क्या है, P1 और P2, जो फॉर्मूला यहाँ पे है ये उसका डेरिवेशन। ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इसके बाद हम ट्राइंगल का फॉर्मूला देख ही रहे, बट अदरवाइज ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए लेक्चर पॉज करके, फिर हम आगे देखें। Okay, now we will have trapezium. ट्रेपेजियम फिगर आपको मालूम है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, इसमें पैरेलल होता है। दिस इज ए बी सी डी ट्रेपेजियम। ठीक है, और इसमें भी मैं इसका हाइट इस तरीके से कंसीडर करूँगा से डी क्यू। ओके, तो ये परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये ट्रेपेजियम का क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट रिप्रेजेंट करता है। ट्रेपेजियम का पेरीमीटर अगेन सम ऑफ ऑल साइड्स ही होगा। और एरिया का फॉर्मूला इसका इंटरेस्टिंग है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ए बी प्लस सी डी, दोनों पैरेलल साइड्स का एडिशन एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट इंटू हाफ। सो हम इसके हिसाब से कंसिडर करें तो हाफ इंटू डी क्यू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि ए बी प्लस सी डी। जो भी वैल्यूज दिए वो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एरिया जो है इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रिस्पेक्टिव फॉर्मूला फॉर ट्रेपेजियम। तो ये आप लिख लीजिए। ओके,
नाउ वी विल प्रोसीड विथ ट्राइंगल, जैसे हमने डिस्कस किया था। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे अगेन, क्योंकि फॉर्मूले के बिना आप ये याद, अरे सम जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये है हमारे पास सबका ट्राइंगल ए बी सी। क्या थोड़ा दिस इज आवर ट्राइंगल ए बी सी, और ये हमने सपोज ए डी जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अगेन परपेंडिकुलर क्या करता है, हाइट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ट्राइंगल का पेरीमीटर तो यही होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स या ऑल थ्री साइड्स जो आप कंसिडर करो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और एरिया जो है वो ट्राइंगल का होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे हाफ, बेस इन द सेंस हाइट जहाँ पे खड़ा है वो, यानी कि बी सी, और हाइट यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ए बी। ओके, अगर कुछ ऐसा चेंज है, सपोज मान लो कि ऐसा फिगर है हमारे पास, और ये बी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है, तो हमारा फॉर्मूला इसके हिसाब से क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस ए सी और हाइट परपेंडिकुलर क्या होगा, बी एफ होगा। तो इनके जो लेंथ होंगे वो, हाँ डेफिनेटली इन दोनों से जो भी आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, जो भी बेस और हाइट दिया हो हमें, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अगर सी से इस तरीके से अल्टीट्यूड हो तो ए बी बेस और सी डी सपोज अल्टीट्यूड है या हाइट है, तो हाफ इंटू ए बी इंटू हम सी डी कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला की जैसे। तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला। ओके, तो ये आप लिख लीजिए ट्राइंगल। Okay, now we are going to proceed with circle. ये है हमारा सर्कल, सर्कल का सेंटर, और सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस दैट इज नोन एज रेडियस, ठीक है। सर्कल सेंटर, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस दैट इज रेडियस। अब सर्कल में पेरीमीटर वैसे तो नहीं होता है, उसमें क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2πr, कि जिसमें पाई का वैल्यू जो है वो हम 22/7 कंसिडर करते हैं कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हो तो वो हमें 3.14 कंसिडर करना होता है, ठीक है। आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है ही, रेडियस। ओके, अब आता है एरिया। तो सर्कल का एरिया होगा क्या, पाई आर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर यानी कि जो भी रेडियस दिया है उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब कि ये ऐसे आधा सर्कल, ठीक है। तो ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, सर्कल से मतलब सेंटर से सर्कल तक का, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस एज अ होल, इसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। इट विल बी नोन एज डायमीटर।
विच विल बी ट्वाइस ऑफ द आर, ट्वाइस ऑफ रेडियस। यहाँ ट्वाइस ऑफ रेडियस को डायमीटर कंसिडर करें ना तो ये फॉर्मूला पाई डी भी बनेगा, पाई इंटू ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी कि डायमीटर डी। ओके, तो सेमी सर्कल का अगर हम सरकमफरेंस कंसिडर करें या पेरीमीटर, तो उसमें दो चीज हो सकती है। एक, अगर हमें सिर्फ ये सर्कुलर पार्ट या सेमी सर्कुलर पार्ट का सरकमफरेंस चाहिए तो वो इस 2 पाई आर का आधा हो जाएगा, यानी कि 2 कट, तो इट विल बी पाई आर। ओके, क्योंकि पूरे सर्कल का 2 पाई आर है तो इतने का क्या होगा, हाफ ऑफ डेट, तो हाफ ऑफ 2 पाई आर, 2 कट हो जाएगा तो पाई आर। लेकिन अगर हमें ये डायमीटर भी इंक्लूड करना है तो एक तो पाई आर ये सर्कुलर पार्ट का और प्लस डी, ठीक है, डायमीटर, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो पाई आर प्लस ट्वाइस ऑफ आर, डायमीटर यानी कि क्या होता है ट्वाइस ऑफ आर। देन एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, तो एरिया यानी कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर का आधा, तो ये जो हो गया वो सेमी सर्कल का एरिया हो गया। ठीक है, तो ये जो है हाँ, वो आपके सारे फॉर्मूला की लिस्ट बन गई। ठीक है, सभी फॉर्मूला आप चाहो तो 5-5 बार लिखो, पर याद रखो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। दो कंसेप्ट इसमें चाहिए होते हैं, एक फॉर्मूला और दूसरा कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। दूसरे का आंसर तब भी मिलेगा जब फॉर्मूले आते हो। ठीक है, इसलिए ये दोनों चीज़ें समझना हमें इस चैप्टर में ज़रूरी है, खास करके वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो पहले ये आप लिख लीजिए सब। ओके, सो आज के सेशन में हम यहाँ तक रखते हैं। ये जो भी सारे फॉर्मूले हमने अभी लिस्ट आउट किए हैं वो सारे फॉर्मूले आप अच्छे से समझ के उसको हम कह सकते हैं कि बाय हार्ट करके रखना। कोई भी फॉर्मूला पूछा जाए आपको आना चाहिए, क्योंकि इन फॉर्मूला के बेस्ड आपके दो एक्सरसाइज है 11.1 एंड 11.2। तो नेक्स्ट सेशन से हम 11.1 स्टार्ट करेंगे कि जिसमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए भी फॉर्मूले तो आने चाहिए ही चाहिए। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रोसीड विद एक्सरसाइज 11.1। फिलहाल वी आर एंडिंग दिस लेक्चर। टेक केयर।